Sure. So this is probably for the first time when I'm delaying the class purposefully. Yeah? I just want that those people who just join the class to check कि कुछ हो रहा है कि नहीं वो लोग जल्दी चेक करें और निकल जाए so that we are left with the people who are really interested because this is going to be a long session and only those who are really interested should be here. So this session is about answer writing. The plan initially was just for the students who are in personal mentorship batch. Then I thought कि करना ही है तो थोड़ा ज्ञान बांट दिया जाए सबके लिए. तो keep notes while dictating or when we are whatever we are discussing. What is the agenda today? I think it will be at least a 2 hour session. So those who want to leave now leave because let others join. And those who think they can stay, so stay करेंगे. What we will discuss and why you should be in this session. I have been evaluating copies for quite some years now. And when you evaluate the copies, you know much more than what you learn while writing. Last couple of years, I have evaluated some of the copies of the toppers, have helped some of the toppers in being topper. So I will be discussing all the learnings that I have got from these sessions. This session is going to be very boring, not interesting like sociology or NCRTs. So those who are ready to get bored, who are really here to learn something, should stay. I'm not going to make it interesting. ठीक है, समझ में आई बात? At the end of the class, I will be sharing this handouts with you. So, but you should try to keep notes as well. Answer writing workshop part 1. पहली बात तो ये कि why answer writing, why you should learn answer writing or when you should learn answer writing. तो देखो, answer writing has two parts, which I always say and some of you already know. One is your presentation, how you are arranging, how you are writing. And the second part is content or knowledge. The UPSC pattern has changed a lot in last 5-6 years. The way to write the answers has changed a lot. Now the space has reduced. So in mains you will only get two kind of questions, 150 words and 250 words answer. 10 markers and 15 markers. Whatever you know, everything has to be summed up within these words. Now the challenge is very different. Most of you who are starting, initially you will struggle to find content. तुम्हें पता नहीं है कि क्या लिखना है. But as you will read more and more, you will have a lot of content, but fitting that into these formats, 150 word, 250 word, and making it look like an answer, not like an essay or not like a random delivery of content, is very important. Your selection depends upon mains.
प्रीलिम्स तो चलो हो गया जैसे तैसे. प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट some luck, some practice, some knowledge. Once you qualify the prelims, the real hurdle is in mains. Mains is of 1000 marks for GS and 500 marks for optional. And again, then you have interview. Now, interview is also very dicey, very tricky. इतना tricky है optional कि you never know कि what marks you are gonna get. The same person can get 200 marks and the same person next year can get 130 marks. So 60-70 marks variation in interview is not a big deal. One who has got 130 can increase it up to 200. Somebody who has got 200 can come down to 130. So very dicey. This is a mistake that I made. I was super confident about my interviews, and wherever through whomsoever I consulted, everybody was like, "तुमको 200 नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? We do not know." So I was super confident, and that's a big mistake I made. I calculated it like that कि 200 नंबर तो वहाँ ही रहे हैं, and I got 157. So you never know कि what marks you are gonna get in interview. Best of the best people get less marks. Some very underconfident people get good marks. पता नहीं क्या चलता है वहाँ पे. No amount of practice can ensure your marks here. Only thing certain in whole UPSC preparation is your mains. If you will put effort here, it will give you the proportional result. तुम जितना मेहनत करोगे उतना यहाँ डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है. द चांसेस ऑफ गेटिंग वेरी लेस मार्क्स और वेरी हाई मार्क्स इज वेरी लेस. ठीक है, जितना मेहनत करोगे उतना आउटपुट आएगा. नाउ इफ यू रियली वांट टू सिक्योर योर रैंक, इफ यू डू नॉट वांट टू लीव थिंग्स टू द चांसेस, पता नहीं क्या मिल जाएगा, अच्छा आ गया तो अच्छी सर्विस मिल जाएगी, नहीं आया तो बाहर भी हो सकते हैं. लेट्स से इफ यू डू नॉट वांट टू टेक दैट गैम्बल, देन यू हैव टू गेट एक्सेप्शनली गुड मार्क्स इन मेंस. यहां तुमने अगर अच्छे नंबर ले आए तो you have come out of that danger zone. But whatever happens in the interview, you will be in. So this is the importance of this class. This class will decide whether you will qualify or not. Now, some of you are very beginner. You do not have much idea about any topic, any subject. And for you, you do not have to write answers. पहले ही बहुत clear है. Until unless you read some books, you start reading reference books, you get some idea. उससे पहले आंसर लिखना is wastage of your time. What you have to do is you work upon your language. You write, लिखना है but आंसर नहीं लिखना है. क्या लिख सकते हैं? Write diaries, read editorials and try to rewrite those. Write anything but do not try to write down some points, try to make notes, everything. Try to write 1 or 2 pages at least every day in the initial times of your preparation, but not answer writing as such. जरूरत नहीं है, होगा भी नहीं, you will be wasting your time. तो now अब जो बच जाते हैं, जिन्होंने थोड़ा पढ़ लिया है और तब आपको आंसर लिखना है, those who are beginners, they can listen to the session and learn from it कि बाद में when you will go and start writing तब क्या कर सकते हैं. Answer writing workshop, this is the handout first. The components of a good answer. What makes a good answer? In the later part, in the last part of this session, we will be comparing some of the copies of the toppers. As I said during the video, we will be comparing the copy of Subham Kumar, Ankit Jain, rank 1, rank 2, rank 5, जिसने जो भी अच्छा लिखा है, whatever stand out in their writings,
we will compare and we will try to learn from those. ठीक है? So but that's the last part. उससे पहले थोड़ा सा कहानी सुनना पड़ेगा. Component of a good answer. See, there are 7 things that as an evaluator I want in your answer. If they are not there, your marks will be deducted. The very first thing is contextual and keyword competence. Contextual and keyword competence. इसका मतलब क्या होता है? Writing your answer as per the demand of the question. जो कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन का उसको समझना. Many a times you take this thing very simply. तुम अभी जो लोग आंसर नहीं लिखते उनको लगता होगा कि ये तो बहुत आसान चीज है, मतलब कॉन्टेक्स्ट किसको नहीं समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ूंगा और समझ में आ जाएगा ना, राइट द आंसर. बट once you will start writing, I can tell you some of the toppers, even those who have got rank 1 and 2, they also miss the context in some of the questions we have evaluated and know. को बताना पड़ता है कि भाई तुमने क्वेश्चन कुछ और ही समझ लिया है, ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है. So understanding the question itself, कि what the question is asking and what are the keywords in the question, that's the very first step. What you can do is, as a practice, you can take some questions, previous year question उठाओ and try to think that what is the context of the question. Do not worry about the content कि क्या लिखूंगा मैं क्वेश्चन में, ये नहीं सोचना है. पूछ क्या रहा है वो सोचना है. जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं. See, read this last question. Explain with example. पढ़ो इसको एक बार. People are now texting me कि maximum people not allowing to join. So let me share the. Achha, I have, that's why I have made it public today so that everybody can watch it on the YouTube. Check YouTube. चलो पढ़ लिए क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन एवरीवन. Explain with example how the self-help groups have been playing a significant role in empowerment of women in India. Also mention the initiatives that have been undertaken by the government for promoting self-help groups. क्या है कॉन्टेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन का, कौन बताएगा? एनीवन? Raise your hand, I will allow you to unmute. We have some people. बताओ रिंकी. सर गुड इवनिंग. देखो सर सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन करेंगे 1 to 2 लाइंस सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या है एंड हाउ इट्स. नहीं वो बताओ क्या लिखेंगे वो बताओ. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बताओ. अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब कि हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल in the upgrading of the women in India, and we have to mention some initiatives taken by the government or measures what the government take to empowerment of women in India. पहले यहाँ कीवर्ड्स हाईलाइट करते हैं. वन कीवर्ड हियर इज एक्सप्लेन. यू हैव टू एक्सप्लेन समथिंग. ठीक है, कुछ भी दिया हो उसको एक्सप्लेन करना है, एंड व्हाइल एक्सप्लेनिंग दैट यू हैव टू गिव
examples. Two things are here. What you have to explain is how self-help groups have been playing significant role in empowerment of women in India. देखो एक word is important here. You have to first write how self-help groups, or we can say the role of self-help groups, role of self-help groups in empowerment of women where in India. किसी और देश की बात नहीं कर रहा है. If the question would have been कि explain how the self-help groups have been playing a significant role in the empowerment of women not in India, whether the answer would be same or different. अगर सिर्फ यहां तक रहता तो क्या तुम लिखते, सेम आंसर लिखते, अलग अलग आंसर लिखते? वेरी डिफरेंट. पूरा आंसर बदल जाता था, पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता, पूरे एग्जाम्पल्स बदल जाते. सो if you are reading the question and somehow you miss one part of the question, no, it will change the whole context of the question. So during in personal mentorship batch, I have given you some questions and you had written the article, so written the answer. So let me bring one such answer and let me give you an example कि how you people have missed the context. प्रत्युष का लिखा हुआ एक आंसर है, how do you miss the context? The question here is what do you understand by the term secularism in the context of India? ठीक है, क्या क्वेश्चन करे कि what do you understand by the term secularism in the context of India? What is the context of this question? What does this question asks from you? This question is not saying you to explain secularism. ये नहीं कह रहा कि explain what is secularism. It's not telling you कि explain कि what are the provisions. तो ये तो second part में पूछ रहा है. तो provisions regarding constitution is a separate question itself. What we are going to write in the first part? What do you understand by the term secularism in the context of India? देखो, whenever it is asking specifically that you have to write in context of India, it means you have to present a comparison. Secularism outside India and secularism in India. Until unless you are writing this comparison, whatever you write in the answer, your answer is not complete. You have to show the difference between the secularism outside India and secularism in India. समझ में आ रही है बात? तो कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत क्रिटिकल है. If you got the context wrong, if I find a copy in which the context is wrong, I will not read the answer. If in the first few lines I will find that the person is not answering the question as per the context, just first few lines, and I will award a 0 and I will move forward. I will not read कि आगे तुमने क्या लिखा है. When Pratyu sent me his answer, I didn't read it. मैंने बोला कि खराब लिखा हुआ है. बाद में like we will discuss it. We have to discuss, and then we discussed about an hour कि कैसे ठीक किया जा सकता है उसको. तो it's very important that in the very first few lines you made it very clear to the examiner that you have understood the context and the answer that you are going to write is as per the context of the question.
ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें आएंगी, एक होगा टॉपिक और एक होगा डायरेक्टिव। डायरेक्टिव क्या हुआ? डायरेक्टिव हुआ यहाँ पे एक्सप्लेन, कहीं पे आएगा क्रिटिकली एग्जामिन, कहीं पे आएगा एग्जामिन, कहीं पे आएगा इनिमुरेट, कहीं पे आएगा डिस्कस। देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायरेक्टिव्स। नाउ many of the beginners, they get confused in the very first place कि ये क्या क्या डायरेक्टिव क्या क्या मीन करता है। राहुल इज आस्किंग कि हाउ टू डिसाइड टू कंपेयर विथ विच कंट्री पार्टिकुलरली। राहुल, यू डू नॉट हैव टू डिसाइड कि with which country you have to compare. There is a whole list. If you have read the topic, you know that there are some countries their secularism is different. Basically Western countries, their model is different and Indian model is different. So basically it's a comparison of West and East. अगर जिसको पता है उसको पता है, इसको नहीं पता है तो फिर you will be scratching your head कि किससे compare करें। कोई मुश्किल क्वेश्चन है? It's a very easy one that we start our discussion with. तो दो चीजें हैं कॉन्टेक्स्ट में, टॉपिक एंड डायरेक्टिव। डायरेक्टिव, एज आई टोल्ड यू, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायरेक्टिव्स, बट अपने को क्या करना है, आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू आइडिया हियर अबाउट डायरेक्टिव्स। देखो डायरेक्टिव्स ब्रॉडली दो तीन टाइप के ही होते हैं। अदर देन दैट एवरीथिंग इज जस्ट अ कोरोलरी ऑफ दैट। वन डायरेक्टिव इज डिस्कस। Discuss is kind of the most broadest directive which is possible. When the question is saying to discuss something, that means you have to write everything about that. You write the good things about that issue, you write the bad things about the issue, and then you conclude. Discussion, as we call it, discussion, discuss is just a debate on paper. अगर किसी क्वेश्चन में है कि डिस्कस समथिंग, दैट मीन्स यू आर डिबेटिंग ऑन द पेपर, यू आर गिविंग द पॉइंट्स इन फेवर, पॉइंट्स अगेंस्ट इट, एंड देन यू एंड। एक डायरेक्टिव तुम्हें मिलेगा एक्सप्लेन। नाउ एक्सप्लेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक्सप्लेन का मतलब होता है यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज गिवन। जो दिया हुआ है बस उतना एक्सप्लेन करो। इफ आई एम सेइंग कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, एक्सप्लेन, तो यू एक्सप्लेन इट कि हाउ इंडिया इज अ, या फिर इससे भी अच्छा आएगा, एक और कीवर्ड है विच इज वेरी स्ट्रिक्ट, इट्स जस्टिफाई। अगर कीवर्ड आता है जस्टिफाई, देन यू जस्ट स्टिक टू व्हाट इज इट सेइंग। इफ इट्स सेइंग कि जस्टिफाई इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो यू जस्ट जस्टिफाई। फिर तुमको उसमें पॉजिटिव निगेटिव ज्यादा नहीं लिखना है, तुम बस जस्टिफाई करो कि हाँ क्यों है। ट्राई टू मैक्सिमाइज द पॉइंट अबाउट इट। Explain, justify, try to stick to the question. Do not try to counter the question कि नहीं ये जो बोल रहा है वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है। Even if you feel it's wrong, try to, it's asking to justify or explain, you just stick to the topic. Comment या examine या critically examine, सब में वही करना है। Points in favor, points against it. If it is asking specifically critically examine, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि if it is critically examine, then try not
to miss, then you should try to make a separate section altogether ki these, the lacunas in this, the problems with this, the downfall of this, downside of this. तो ऐसा करके तुम एक अलग से एक सेक्शन बनाओ और वहां उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने की कोशिश करो. मतलब यहाँ पे इट बिकम्स अ मस्ट that you write the negative aspects of a question. So if you ask me, this happened like when we were discussing about all these things about vision IAS training and all ki kaun kaise kahan kaise likhta hai, and there were many toppers in that discussion, many teachers, and everybody was sharing their idea ki what do you mean by this keyword and what do you mean by that keyword. My answer was very simple. Ultimately in the exam you do not see the keyword. तुमको जो आता है तुम लिखते हो. That's the harsh reality. Everybody does that. Outside the exam everybody will say कि अरे इस keyword का ये मतलब होता है. लेकिन एग्जाम में and then everybody started laughing कि हाँ, like ultimately somebody said the truth. तो keywords या directives को लेके परेशान नहीं होना है. Do not stop writing. Do not stop thinking. बस इसलिए कि you are confused about what is the directive. ठीक है. अल्टीमेटली हर डायरेक्टिव का यही मतलब है, यू राइट द गुड पॉइंट्स, इफ देयर आर सम बैड पॉइंट्स यू राइट द बैड पॉइंट्स एंड देन यू मूव ऑन. जैसे कि इस क्वेश्चन में है, हमने जो देखा यहाँ पे एक्सप्लेन, तो यहाँ पे नाउ यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट कि वेयर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर फेलिंग. ठीक है. यहाँ पे तुमको बस रोल लिखना है कि व्हाट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव डन, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स अबाउट देम, वेयर दे हैव हेल्प. बट यहीं पे अगर मैं कीवर्ड लिख देता कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ, और critically examine how the self help groups have been playing role, significant तो फिर मैच नहीं करेगा उसके साथ, have been playing a role in empowerment of women in India, or critically examine the role of self-help groups in the women empowerment in India. अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, then you have to write about the problems कि self-help groups are limited just in few states. There is still a lot of illiteracy and they are not able to make it bigger. They're not still very sustainable and mostly dependent upon debt and all. तो इस तरीके के आइडियाज के साथ you will only come when it is asking कि critically examine और examine. जब परीक्षा लेने के लिए बोले तो हम उसको दोनों साइड बताएंगे, नहीं तो we will stick to the rule. ठीक है. So here context of the question is empowerment via participation through self-help groups. ये इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है. डिमांड क्या है क्वेश्चन की, वो आपसे क्या चाहता है, आप क्या लिखो वहां पे. फर्स्ट you define the self-help groups, what is self-help group, and if you have some examples give the example. Then mention the mention their role in women empowerment, and then mention the government initiatives. बस ये है इस क्वेश्चन का डिमांड. क्लियर हुआ कुछ about directives, about the demand of the question? So the key is that you read the question, take some time to read and reflect about it. क्वेश्चन देख के सीधा लिखना ही टॉपर्स भी नहीं स्टार्ट करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन देखो, उसको समझो कि क्या कहना चाह रहा है. टेक सम टाइम. इनिशियली इफ यू आर अ बिगिनर यू शुड थिंक फॉर 5 minutes जस्ट अबाउट द क्वेश्चन कि पूछना क्या चाह रहा है.
लिखना तो छोड़ो, अभी तुमको 5 मिनट कम से कम सोचना चाहिए कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, व्हाट इज द डायरेक्टिव, व्हाट आर द कीवर्ड्स, what I have to write. Now, once you are good with this, then second is about content competence. चलो एक दो क्वेश्चन मैंने और दिए हैं, तो पर्सनल मेंटरशिप वाला ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम लोग और बाद में ठीक से लिख पाओ. Let me find some questions and let us do it. Let's discuss this question. This is the question that I gave you yesterday. ये क्वेश्चन देखो. Everyone, think about it. क्या कहना चाह रहे हैं? Where there is a right, there is a remedy. In this context, discuss the nature and significance of writs in India with adequate examples. How many of you know that what is writ? Forget about the question. किसको पता है कि writ क्या होता है? सबको पता है writ क्या होता है? जिनको नहीं पता है, don't worry. This is a workshop, so we should treat it like workshop. ठीक है. क्या हो सकता है बताओ? वंशी, प्रत्युष, जिन्होंने लिखा है, some of you I see have already sent me the answers as well. First, let us figure out the directive. Directive is discuss. Discuss means it's a very broad directive. You can write anything. Like कोई ऐसा limitation नहीं है यहाँ पे कि क्या लिखना है. So broadest possible directive. सबसे बड़ा है, इसमें जो मन है वो तुम लिखो. ऐसा एक directive. So that one is sorted. Where there is a right, there is a remedy. क्या मतलब हुआ इसका? Where there is a right, there is a remedy. If right is infringed, there should be damage. नहीं, जहाँ right होता है वहाँ remedy भी होते हैं to protect those rights. विजय माल्या केस फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट नो. अगर कहीं सच्चाई है तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा. नहीं सर भी. टू रिस्ट्रिक्ट फॉर मिसयूज ऑफ राइट्स है नो सुमित्रा. हाँ, तो अपर्णा ने ठीक कहा है that if there is a right, there is a remedy, or if there is a right, there should be a remedy. As if you have read polity, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? What Ambedkar said that Article 32 is the heart and the soul of Constitution. Why heart and soul of Constitution? Because if the judicial review is not there, if judicial review is not there, your rights doesn't matter. तुमको बहुत सारे राइट्स दे दिए जाएं और ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि when your rights are violated, where you will go. If there is no such provision, what will you do? So the idea is कि if there is a right, there should be a remedy. Like तुम्हारे घर में अगर तुम्हें right मिला हुआ है कि you can eat 3 times a day, लेकिन अगर किसी दिन तुम्हें खाना नहीं मिलता है तो देयर शुड बी सम पर्सन टू होम यू कैन गो एंड कंप्लेन कि मम्मी मुझे आज खाना नहीं मिला है, पापा मुझे मम्मी ने आज खाना नहीं दिया है, एंड देन योर मदर और द फादर
will find a cure for it, find a remedy कि why you didn't get, and that's there will be some solution. लेकिन ऐसा है कि तुमको खाना मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला तो you cannot do anything. फिर that right is not a right, right? So where there is a right, there is a remedy. इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए, if you have understood this concept, then discuss the nature and significance of writs in India. You have to discuss two things. देखो, इस क्वेश्चन में पहले ही ये डिसाइड हो गया कि in the question there must be two parts. क्वेश्चन के दो पार्ट होने चाहिए. First is nature and second is significance. So as an evaluator, if I am checking the copy now, I will see that there is an introduction, there is a nature, there is a sub column of significance, and then there is a conclusion. If this structure is not there, if I have to find in your answer कि कहाँ significance लिखा है, कहाँ nature लिखा है, तो that's not a good sign for you. I can say that. तो जब आंसर लिख रहे हो तो ये चार चीज है. 4 parts of your answer: your introduction, a subheading saying nature of the writs, and significance of the writs. यहाँ पे तुम पॉइंट्स लिखो जितना तुमको लिखना है, यहाँ पे तुम पॉइंट्स लिखो जितना तुमको लिखना है. So this is the demand of the question. In the introduction, because it's saying कि in, देखो अगर हम ऐसे ही लिखते हैं, सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. if this part was not given in the answer, सिर्फ इतना ही रहता, discuss the nature and significance of writs in India with adequate example, तो क्या चेंज आता आंसर में तुम्हारे? Would there have been any change in your answer, or you would have written the same answer that you will write otherwise? क्या चेंज आता? पूनम is saying I would have written a changed answer. क्या चेंज आता तुम्हें अगर वो है और नहीं है? So what difference you would have brought in your answer? लेने वो tab 4 पहले तो you correct your name and your answer is not correct. तो देखो, अगर ये फर्स्ट पार्ट नहीं होता तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस तुम वैसे ही लिखते, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेट्स. But because this first part is added, just because it is added, you have to address that. You cannot assume कि इसका कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ. You have to address that कि why it is there. And the reason, तो यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट को समझाना पड़ेगा जो हमने डिस्कस किया कि what writs do, how writs provides remedy, how writs are remedy. ये एड्रेस करना मस्ट है यहाँ पे. अगर ये नहीं होता, you could have started by just writing कि writs are mentioned in Article 32 of the Constitution of India, or writs are mentioned in Article 32 and 226 of the Constitution of India, and उसके बाद तुम आगे बढ़ सकते थे, कोई इशू नहीं था. लेकिन when this part is given, you have to write something about it. एक लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, लेकिन उसको एड्रेस करना पड़ेगा. तो कितने लोगों ने जितने लोगों ने आंसर भेजा है मुझे, how many of you have followed this structure?
रिंकी ने या पढ़ना ने किया है, ठीक है, प्रत्युष ने किया है, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रक्चर के बाद। अब तो दूसरी, अब इसमें द सेकंड idea here is कि what you will write in the nature of the writs. Nature of the writs होता क्या है? This is not very clear. In books, you will not generally find nature of the writs. So what you will write in nature of the writs? For that you need to have some creativity, some imagination. थोड़ा thinking capacity होना चाहिए कि nature of the writs क्या हो सकता है. ठीक है, चलो, तो I think it gave you some idea. We are not discussing answers. We will discuss the answer in the पॉलिटी बैच जब करेंगे तब। अभी तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट, पहला बात। अब आते हैं कंटेंट पे, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कॉन्टेक्स्ट और कीवर्ड क्या होता है। दूसरा पार्ट है कंटेंट का। देखो, इफ इफ आई आस्क यू कि व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ अग्निवीर स्कीम, और व्हाई डू यू थिंक, और ऐसे कि डिस्कस अग्निवीर स्कीम, और if I give you a statement कि अग्निवीर scheme will be a game changer in India's security infrastructure or security system, discuss। मैं ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूँ। Many of you have a lot of ideas about अग्निवीर scheme कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, this is true, this is not true, or it will help in reducing the age, or it will help in, क्या क्या लिखोगे? Arguments in favor of अग्निवीर scheme? Anyone? Try? Hmm? Arguments in favor of अग्निवीर scheme. एक दो लिखते जाओ, we will discuss। एक बार पूरा नहीं लिखना है। Average age less, younger age, ठीक है। Employment both expects, नहीं नहीं, पहले तो लिखो कि good points about it, will give option to the candidates who want to change their career, income in such younger age, it can help with providing more discipline, civilian discipline, youth will engage, good change for young aspirants, good chance for young aspirants, reduce current account expenses। करंट अकाउंट एक्सपेंस नहीं होता है सुदीप, तो कल ही परसों ही मैंने बताया न्यूज़पेपर की क्लास में कि व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट करंट अकाउंट इज व्हेन यू एंगेज इन द फॉरेन ट्रेड। जब इंडिया की बात करें तो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट की बात करते हो, डू नॉट मिक्स टू चैप्टर्स। डिसिप्लिन, एग्रीमेंट ऑफ 4 years, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। देखो, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द पॉइंट्स। नाउ दीज ऑल आर जेनेरिक पॉइंट्स। You go and ask to a normal pan wala. That's the example that I always give. So you ask a pan wala, a chai wala, you sit on a chai ki tapdi, you open any WhatsApp forward, and people are talking about this. So how is your answer different from a chai wala? Why he should not become an IAS than you? समझ में आई बात? So because these answers are generic, जेनेरिक मतलब जो सब जानते हैं। जेनेरिक दवाइयां होती है ना, बिना ब्रांड की, कौन लिख रहा है उससे मतलब नहीं है, जेनेरिक है, सब जानते हैं। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर जेनेरिक। इफ यू आर राइटिंग दीज पॉइंट्स इन द एग्जाम, you will get, like, out of 10 you will get 2 marks,
2 नंबर दे दूंगा मैं, अगर बाकी सब तुमने ठीक लिखा है तो, कुछ गलती नहीं की तो 2 नंबर दे दूंगा. बट इफ यू वांट टू इंक्रीज इट फ्रॉम 2 टू 3 और 4, उन्होंने कहा, निशांत ने कहा एवरेज रिडक्शन इन द एज. So somebody will write कि current average age of armed forces is 32 and it will be reduced to 26. तो उसको मैं थोड़ा नंबर दूंगा, उसको मैं थोड़ा ज्यादा नंबर दूंगा, because now this is not generic. It seems that this person has read, he has information, he has some data to back what he is saying. ठीक है. If somebody is saying it will generate employment, and on the other hand, if somebody is writing every year 47, about 45 to 46,000 youth between the age of 17 to 21 or 23 will get employment, तो उसको नंबर मिलेगा, मिलेगा ना. किसको नंबर दोगे? तुम कॉपी चेकर होगे तो किसको नंबर दोगे? पहले वाले को या दूसरे वाले को? तो वट एवर यू आर सेइंग, हाँ, अब थॉमस ने कहा कि वी हैव हाई वर्किंग एज पॉपुलेशन. Now, again, the same statement, high working age population, but if somebody comes with the data, we have 50% people who are in the working age category, or 60% people who is the working age category, or somebody comes with the idea that India is the youngest country in the world with average age of 26 years, तो उसको मैं ज्यादा पॉइंट दूंगा. सिर्फ कोई कहे कि वर्कफोर्स ज्यादा है तो in content, whatever arguments you are making, there should be examples, data, stats, case studies. प्रत्युष, तुम्हारे लिए जब क्या होता है, if you try to write in paragraphs, you cannot make your examples, data stand out. इसीलिए जब हम पॉइंट्स में लिखते हैं, when you write in the points, right, अगर यही आंसर मैं लिख रहा हूं, so I'll write in point एवरेज एज रिडक्शन. मैंने ऐसा हेडिंग दिया, मान लो अग्निवीर का ही क्वेश्चन देखते हैं. द क्वेश्चन इज द आई हैव टू राइट द पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ अग्निवीर, तो मैं हेडिंग दूंगा आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ अग्निवीर स्कीम. पॉइंट नंबर 1, एवरेज एज रिडक्शन. सब ये हो गया मेरे पॉइंट्स का हेडिंग. इसमें अब लिखूंगा मैं नॉट इन फुल सेंटेंस कि वी नो दैट एवरेज एज ऑफ इंडिया इज दिस, सो वी विल व्हेन वी विल गिव जॉब टू दिस पीपल तो इट विल रिड्यूस टू दिस. नहीं, ये नहीं करना. यू डू नॉट हैव द स्पेस टू डू दैट. आई विल सिंपली राइट एवरेज present age is 36, it will be reduced to 26. बस हो गया. एग्जामिनर को पता है तुम क्या कहना चाहते हो, यहां तुम्हें पोएट्री नहीं करनी है. एवरेज एज इज 36, it will be reduced to 26. We know that this can happen, then if we do that, नहीं करना है. समझ में आ रही बात? अरे तुमको एक दिन पकड़ के मैं बहुत मारूंगा मैं तुम्हें सुदित्तों में. सब मेरे पढ़ाई लिखाई पे तुम पानी फेर दे रहे हो. अभी एक वीडियो वायरल हुआ, तुम लोगों ने देखा? एक चाइनीज है, जापानीज है, किसी ने भेजा मुझे वीडियो. हाँ, वो 1 साल पढ़ाता है अपने बच्चे को और फिर भी वो फादर इज क्राइंग. तो वो हाल मेरा मत करो तुम. हाँ, आई सेड स्पेसिफिकली कि करंट अकाउंट को पेंशन एंड सैलरी से नहीं कुछ लेना देना है. करंट अकाउंट इज हाउ मच यू बाई एंड सेल टू अदर कंट्रीज.
एक बार कहने के बाद फिर भी जबरदस्ती बोल रहे हो, सॉरी बोलने के बदले कि सर गलती हो गई, याद आ गया मुझे, फिर से जबरदस्ती पूरा टाइप कर रहे हो बैठ के एकदम। रो मैं, अभी भी आया समझ में कि नहीं आया? ओके सर बोल रहे हो, मतलब वो वाला ओके, ओके ठीक है, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं क्लास के सामने, देख लेंगे आपको। हम्म। चलो, हाँ तो आइडिया है इस बहुत बदमाशी करते हैं। आइडिया here is कि whatever you are writing, support it with examples, give some data, stats, and do not just write the data. Write in such a way that it stands out. Write in such a way that एग्जामिनर को दिखे, पहले पहले जैसे वो खोले तो उसको दिखे कि अच्छा, he is talking about this, he has written, he has given this data, he know that data should not have be lost somewhere in your answer। ठीक है? सो कंटेंट शुड बी वेरी क्लोज टू द पॉइंट, इधर उधर की बात नहीं लिखनी है। जैसे कि प्रत्युष ने इस क्वेश्चन में क्या किया, एंड मोस्ट ऑफ यू डिड दिस मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, दैट you started writing about word secularism was added into the constitution in this time and this time, and even after it was added later, but India is still a secular country. Question is not asking this. This is not the demand of the question. This is not the content that examiner is looking for. मतलब प्रत्युष ने क्या किया कि सर मैंने बाद में लिखा है इधर नीचे जाके, बट वहां कोई देख ही नहीं रहा है तुम्हारे आंसर को। इफ आई फाइंड इट हियर इट्स नॉट देयर, देन आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चन। आई गॉट दिस कि तुमको नहीं आता है, मुझे ये समझ में आ चुका है तुम्हें नहीं आता है, तो मैं अब नहीं पढ़ूंगा तुम्हारा आंसर। और मैं तो पढ़ भी लूंगा बिकॉज आई एम बीइंग पेड टू रीड। यूपीएससी इवेलुएटर विल नॉट रीड, उनको बहुत कम पैसा मिलता है, उससे ज्यादा पैसा हम लोगों को मिलता है चेक करने के लिए, चेक करो। बट ही विल नॉट रीड, ही इज अ 60-70 ईयर ओल्ड पर्सन, तो उसको इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी कॉपी में आंसर ढूंढने का। देन द नेक्स्ट वन इज, जिसको आज सीखना है, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल टुडे, इंट्रोडक्शन competence। Whenever you are writing the answer, the thumb rule is 20% मैक्सिमम। तो अगर तुम 150 का लिख रहे हो 10 मार्कर क्वेश्चन में, योर इंट्रोडक्शन शुड बी ऑफ 30 वर्ड्स। नाउ देखो इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कहां तक है, कहां तक इंट्रोडक्शन है प्रत्युष? पता नहीं चल रहा है कि कहां इंट्रोडक्शन खत्म हो गया और कहां से फिर बॉडी स्टार्ट हो रही है। Is it everything in introduction, or introduction was just up to this? तो ये अब तुम्हारा काम है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट वेरी क्लियर टू द एग्जामिनर कि दिस वाज माय इंट्रोडक्शन एंड इट हैज एंडेड नाउ, एंड नाउ आई एम राइटिंग द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। जैसे कि हमने, मान लो अगर ये वाला क्वेश्चन कर रहे होते, अगर हम ये क्वेश्चन कर रहे होते तो हम स्पेशल सब हेडिंग देकर we would have hinted this to the examiner कि now I am moving to the body of the answer। तो मैक्सिमम 30 वर्ड्स
Ideally, if you can finish it between 20 to 25 words, that's the best introduction. इसलिए ड्यूरिंग एनसीईआरटी क्लासेस आई कीप रिपीटिंग, हमेशा कहता रहता हूँ कि ट्राई टू मेमोराइज द definitions because they are your friend while writing introductions. देखो, आंसर राइटिंग जब करने जाओगे, दिस इज द नेक्स्ट लेवल चैलेंज दैट यू विल फेस. सब तुमने पढ़ लिया, सब तुम्हें याद है, लेकिन आंसर राइटिंग में जो एक मेजर प्रॉब्लम आता है वो आता है हाउ टू स्टार्ट. पहला लाइन क्या लिखूं, यही नहीं निकलता है दिमाग से. पहला लाइन क्या लिखूं, होता है ना. इफ एनी वन ऑफ यू एवर ट्राइड राइटिंग आंसर, so it's very difficult to first think of the first line. Once you have written first few lines, then you know what to write in the answer. But first line is very difficult, and it takes a lot of time to just think. अब तुम एग्जाम में हो, you have to write an answer within 6 to 7 minutes, and then if you waste 1 minute just on thinking कि what should be my first line, what should be the introduction of my question, तो तुम्हारा पेपर कभी कंप्लीट नहीं होगा और ना तुम्हारे सपने कंप्लीट होंगे. तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल से देखते हैं और उसके बाद आज का ये क्लास एंड करेंगे. बॉडी और कंक्लूजन के बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर सब नेक्स्ट क्लास में. कुछ कॉपीज दिखाऊंगा कि कैसे टॉपर्स ने इंट्रोडक्शन लिखा है. देखो, इंट्रोडक्शन, पहला काम क्या है इंट्रोडक्शन का? टू engage evaluator. Your introduction is a hook. You are trying to tempt the examiner to read your answer. तुम वहां कुछ ऐसा करना चाहते हो जो तुम उससे टेम्प्ट कर सको. और दूसरा, ये तुम्हारा मकसद दूसरा ये है कि यू कैन कन्वे दिस मीन आइडिया दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. दोनों काम करने हैं. सो डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन जो है, इट कैन बी ओनली ऑफ 4 टाइप्स. 4 ही तरीके का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, ठीक है. और कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं होता. वो भी तुम बेसिकली इसको 4 क्या 3 तरीके का ही बोल सकते हो. ओनली 4 काइंड्स और 3 काइंड्स ऑफ इंट्रोडक्शंस. और तुम्हारे दिमाग में जो भी आइडिया आता है ना कि आई विल राइट अ पोएम इनटू द इंट्रोडक्शन, और आई विल राइट सच अ ग्रेट लाइन दैट एवरीबॉडी विल लाइक, एग्जामिनर को और कुछ समझ में नहीं आएगा and he will give me 200 marks just by reading my one line. If you are thinking like that, I saw some copy today. अच्छा, दूसरी कॉपी चेक कर रहा था. तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम स्टार्ट इतना धमाकेदार कर दोगे कि वो सब नंबर दे, तो ऐसा नहीं होता है. 4 तरीके का इंट्रोडक्शन होता है. यू शुड फॉलो दिस बेसिक रूल. 1, because when you follow the rule, it saves you time. You do not have to think a lot. तुम्हें पता है कि अच्छा यही लिखना है, यही लिखूंगा. 4 टाइप है. डेटा बेस्ड, पहले तो बेसिक इन्फो टाइप है. मान लो वट एवर क्वेश्चन इज, यू गिव सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंट्रोडक्शन. वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस. सेकंड इज डेटा बेस्ड टाइप. जैसे क्वेश्चन आता है अग्निवीर का, have to write the answer. I can simply start that currently about more than 50% of government's expenses on defense goes into pension and salaries, which is about 1,20,000 crore. ये हो गया मेरा डेटा. अब मैं यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा. टू ओवरकम दिस financial challenge,
गवर्नमेंट कम अप विद द आइडिया ऑफ अग्निवीर स्कीम, एंड उसके बाद मैं लिख सकता हूँ लिसन। तो एक ही आइडिया होगा टू गिव सम डेटा, ऑल्दो इन दिस क्वेश्चन गिविंग डेटा इज नॉट द बेस्ट अप्रोच, लेकिन ऐसे तुम डेटा देकर क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि रिट, या कोई और क्वेश्चन लेते हैं चलो जहां पे वी कैन गिव सम डेटा। अच्छा, हम क्वेश्चन चिंता मत करो। तो ये डेटा टाइप है, ठीक है, जहां यू कैन राइट डेटा। सेकंड इज डेफिनेशन टाइप, सिंपल। जैसे हमने वो क्वेश्चन देखा था सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, you can start with the data that there are these number of self help groups in the India and they are helping this number of women, या फिर you start with the definition that self help groups are associations which do this whatever your definition is, you define it. But keep in mind your definition must be within 20 words. Definition इतना बड़ा नहीं हो जाए कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है, line after line after line. One in 20 words you can maximum write 1 2 सेंटेंस। 3 सेंटेंस से ज्यादा तो इंट्रोडक्शन में आएगा ही नहीं, वो भी अगर तुम छोटे सेंटेंस लिखते हो तो मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस यू कैन राइट। सो थिंक अबाउट इट, तुमको 3 सेंटेंस से ज्यादा नहीं लिखना, यू हैव टू पिक द बेस्ट 3 सेंटेंसेस दैट यू नो एंड राइट इट हियर। द थर्ड टाइप इज रीसेंट इवेंट टाइप। कई बार क्या होगा, देयर विल बी सम लाइक अग्निवीर स्कीम ही है मान लो, तो यू कैन स्टार्ट दैट ऑन दिस डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अग्निवीर स्कीम टू डू दिस। तो ये करंट इंसिडेंट तुमने बता दिया कि क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है, व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द फर्स्ट प्लेस, बाय गिविंग द recent event associated with the answer. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप, क्वेश्चन है गिव an account of the contributions made by Indians to the field of mathematics in ancient and medieval times. Now you have only 4 kind of introductions to write. You can write a data, you can define something, you can give a present context. Now इस क्वेश्चन में क्या है, इज देयर एनी वर्ड टू डिफाइन? क्या डिफाइन करोगे? मैथमेटिक्स डिफाइन करोगे? मिडाइवल टाइम्स डिफाइन करोगे? नहीं, देन यू विल डेविएट फ्रॉम द क्वेश्चन। या इंडियंस डिफाइन करोगे? सो देयर इज नथिंग टू डिफाइन हियर, देयर इज नो नॉट अ सिंगल वर्ड which you can define. तो first is gone. Data, we do not have exact number कि किस आदमी ने क्या किया, कैसे किया, तो here giving data is also not an option. Present context, ये पूछ रहा है ancient and medieval times में, तो how can you give the present context? Although it may happen कि some present context हो सकता है, मान लो कोई पेपर पब्लिश हो जाता है, कोई इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा लाती है, किसी को अवार्ड दे देती है ऐसा इस मैथमेटिक्स के फील्ड में, तो probably you can write, but again present context also is not helpful in this case. The only thing that you can write here is some basic information about the question. क्या लिखा है अंकिता जैन ने? मैथमेटिक्स हैज बीन सेंट्रल टू डिजाइन, आर्किटेक्चर एंड लर्निंग in India since time immemorial. Town planning of Harappa was based on measurement and geometry. बस हो गया, एक लाइन इंट्रोडक्शन, 2 लाइन, कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 के 20, अबाउट 20 वर्ड्स, दैट्स योर इंट्रोडक्शन।
in the body part. Now you will start pointing out कि what are the contributions. समझ में आ रहा है ये क्या किया है इसने और क्या कर सकते हैं हम? क्या निशांत? नहीं समझा मैं, मिडाइवल में एंशियंट मतलब? द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ शुभम कुमार कॉपी. क्वेश्चन देखो इन, देखो पहले तो ये टॉपर्स के आंसर राइटिंग की स्टाइल देखो. उसने क्या किया क्वेश्चन में, सबसे पहला काम यही किया है कि क्या क्या इसके कीवर्ड्स हैं, क्या डायरेक्टिव से उसको अंडरलाइन कर दिया कि कुछ मिस ना कर जाए, मैं सारे पार्ट्स को लिख पाऊं. क्वेश्चन मिडाइवल से रिलेटेड नहीं है, तुमने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा. मैथमेटिक्स इन एंशिएंट एंड मिडाइवल टाइम्स दोनों ही है. चलो तो यहाँ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस बताना है इन डिजास्टर मैनेजमेंट. शुभम कुमार इज राइटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस ऑफ मिटिगेशन, रिस्क मैपिंग, जोन प्रिपेयर्डनेस, मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर. तो ही इज जस्ट गिविंग एन, क्या बोल सकते हैं इसको, डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, डिफाइनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, और ही इज गिविंग सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट डिजास्टर मैनेजमेंट इज. डेटा बेस्ड. नाउ डेटाबेस आंसर लिखना मुश्किल काम है. ये आंसर डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है. और इसीलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, इफ यू आर रीडिंग माई हाईलाइटेड न्यूज़पेपर्स और इफ यू आर गोइंग थ्रू माई यूट्यूब वीडियोस, मैं वहां पे हर न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, आई हाईलाइट दोस. सो यू शुड ट्राई टू कीप दोज डेटास एंड कीप देम सेग्रीगेटेड. जैसा मैंने बताया है एवरनोट में ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो तुम्हारा ऑर्गेनाइज होना चाहिए ऑलरेडी कि दिस डेटा इज अबाउट वुमेन, दिस डेटा इज अबाउट एजुकेशन, दिस डेटा इज अबाउट हेल्थ. सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द आंसर, you can directly pick up the data from there. It makes your task of revision easy. ये डेली प्रोसेस होना चाहिए. डेली यूपीएससी के सिलेबस वाइज पेपर 1 में यू विल नॉट फाइंड दैट मच डेटा, स्पेशली फॉर पेपर 2 एंड पेपर 3. अकॉर्डिंग टू द पेपर, स्पेशली पेपर 2 में जो सोशल सेक्टर है उसके लिए जितना एजुकेशन, हेल्थ, वल्नरेबल सेक्शंस, you should every day try to update your data. Economics में whatever data is coming, you should try to update those data. Agriculture, science and tech, everywhere you can use the data. चाहे पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी वाले सेक्शन में you should try to maintain the data. तो सिलेबस के हिसाब से इन 3 पेपर्स का either you are doing it in Evernote, so you do it in your Evernote, or you can just prepare one single copy. If you want to go in the traditional way, you create a one single copy of data and facts, and in that copy you do the partition. इंडेक्स बना लो आगे. ये और भी मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ डिजिटली कर लो. बट ऊपर एक इंडेक्स बना लो. फर्स्ट 2 पेजेस आर अबाउट वुमेन, सेकंड पेज इज अबाउट हेल्थ, थर्ड और फोर्थ पेज इज अबाउट एजुकेशन. तो 2-3 पेज छोड़ के you maintain such a diary, and whenever you find some data you write it here. The purpose is कि डेटा नोट्स ऐसा नहीं बनना चाहिए कि जब तुम्हें पढ़ना हो तो वो तुम्हें मिले ही नहीं. Your notes should be such that whenever you have to write an answer about women, you can quickly open your copy and look up all the relevant data about women. So data,
अब देखो शुभम कुमार की कॉपी है, highlighting the issue associated with power discoms in India, discuss whether privatizing discoms can help in this regard. पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लेके क्वेश्चन है। इसने बस एक डेटा यूज कर दिया कि इन 2018-19 द टोटल लॉस सफर्ड बाय डिस्कॉम्स वाज स्टैगरिंग 27,000 करोड़। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको याद रखना पे बहुत मुश्किल है। इफ यू आर फाइंडिंग, डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज कॉम्प्लिकेटेड डेटा। ऐसा कुछ डेटा है कि 26,25,552 का कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। राउंड इट अबाउट 27,000, ठीक है, चलेगा, एग्जाम में चलेगा। एंड ट्राई टू मेमोराइज इजियर डेटा, जो याद रखना आसान है, जिसको तुम बहुत जगह यूज कर सकते हो, वैसे डेटा याद करो। स्टार्ट विद द डेटा, then he has defined, देखो he has used both techniques. First he has given a data, and then he is defining the power discoms as well. Power discoms are involved in distribution of electricity from power generating sites to where the power is consumed. Now again about smart agriculture, this is a copy of Mamta Yadav. Same, he's giving a data कि 52.5% agricultural households are in debt, 49% unemployment in India. Agriculture amounts to 49% employment in India. बहुत बेसिक डेटा है, डेली पढ़ते हो, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। तो स्टार्ट विद द बेसिक डेटा। यहाँ भी एक डेटा दे दिया, cotton and pulses production of India amount to 25% of the world production. तीसरा टाइप डेफिनेशन टाइप, you take the key idea and define it. नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, शुभम कुमार ने बस उसको डिफाइन कर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया क्या होता है। यह इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन है, कर दिया कि इंक्लूसिव ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज, उसका डेफिनेशन दे दिया और फिर उसका आंसर जो है वो लिखना स्टार्ट किया। तो आई थिंक नाउ यू हैव गॉट रफली अ वेरी गुड आइडिया। अब ये देखो रीसेंट टाइप में जैसे मैंने बताया कि बैरियर फ्री ट्रेड को लेकर क्वेश्चन है, तो इसमें लिखते हैं गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ब्रॉट न्यू लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट ने नया लेजिस्लेशन लाया है, फार्म्स एक्ट, उसमें ये तीन प्रोविजन है। सो गिविंग द करंट relevant fact why this question has been asked. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर तुम्हारे कॉपी में इनमें से कुछ मुझे नहीं मिल रहा है, if you are not writing a definition, if you are not writing a data, if you are not giving a current incident, if you are starting like this, if you are writing like this, तो फिर मेरे लिए इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है और इसमें नंबर देना उससे ज्यादा मुश्किल है। तो जैसा मैंने प्रतीश को बताया, you could have just started simply with secularism refers to the separation of religion from state. बस इतना करो, काम खत्म। That's your introduction. हम बहुत अच्छा लिखने के चक्कर में बहुत खराब लिख देते हैं। Initially when we try to write like the Hindu editorials. We try to write it like newspapers, क्योंकि that's the only thing that we are reading. तो हमें लगता है कि न्यूज़पेपर टाइप का लिखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यू हैव टू डू द अपोजिट थिंग। देख रहे हो कितना सिंपल लिखा हुआ है, ये देखो इस आंसर में ये फर्स्ट लाइन देखो, कितना सिंपल सा बात लिखा हुआ है। इंडियन एग्रीकल्चर अमाउंट्स फॉर 49% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये लिखना मुश्किल काम है, इसके लिए तुमको बहुत लैंग्वेज का स्किल चाहिए, नहीं चाहिए ना।
तो फालतू के वर्ड्स जैसे इन द इन इंडिया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इंडिविजुअल्स, तो इतना एक ही लाइन में तुमने इतनी 20-25 वर्ड्स तुमने पहले लाइन में ही कंज्यूम कर लिया अपना, योर कोटा इज ओवर। चलो, so that's today about the introduction, and I think we have a little bit talked about the context as well. Next class में आएंगे तो we will discuss about three other as four at least three other aspects: structure, presentation, language and conclusion. Structure कैसा होना चाहिए, presentation कैसा होना चाहिए, language कैसा होना चाहिए और conclusion कैसा होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, लास्ट इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन, थोड़ा अनअकैडमी टाइप प्रचार कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। हम सोशियोलॉजी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एनीबडी हु वांट टू ज्वाइन द सोशियोलॉजी बैच, they can ping me on my number. I hope all of you have my number. So if you want to join the sociology batch, my number is 8368481944। आज पहला फॉर्मल क्लास हम करेंगे, तो classes has already started. Do not wait too much. If you need any information about the sociology batch, you can contact me. The fee is 14,999। यार तो बनता है ना। हाँ रिंकी, अक्षय बताओ। हाँ सर। सर वो हेलो हेलो। सर, कल मैंने वो आपने जो 3 क्वेश्चन लिखने को बोला था वो तीनों ही भेज दिया। एक बार वो पहले रीड वाला इंट्रोडक्शन देख लीजिए, मैंने सही हुआ है या नहीं है। आपने जैसा बताया था वैसे ही लिखा था, तो एक बार अगर चेक कर लेते। ठीक है, करता हूँ। बताओ रिंकी। हाँ सर, बोल रहे थे कि जो नेक्स्ट सेशन होगा आंसर राइटिंग का वो जनरल ग्रुप में ही लिंक कीजिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। सॉरी, आई डिडंट गेट योर। हेलो। हाँ मैं समझ गया, मतलब लिंक जो होगा वो डिस्कशन मैं सबके साथ कर लूंगा, पर्सनल मेंटरशिप में स्पेशली नहीं करूंगा। ठीक, नॉट। हाँ हाँ, ठीक रिक्वेस्ट। ठीक, मैं शेयर कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, हाँ मैंने पढ़ा है इसको। आई कुड नॉट मेक इट आउट कि तुम क्या लिखना क्या चाहते हो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में। क्या लिखे हो, थोड़ा पढ़ के बताओ। एज सिग्नेचर सोशल एंड जस्टिस गारंटीज, क्या लिखे हो? सिग्नेचर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट। हाँ, हाँ सर, मैंने वो लिखा था एज सिग्नेचर ट्यून social and economic justice guarantees by the fundamental rights which cannot be ordinarily dismissed. To protect this rights, Supreme Court are एज and सिग्नेचर ट्यून। अब तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने ठीक लिखा है क्या? तुम्हें बताओ, जो मैंने बताया उसके हिसाब से हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज व्हाट आई टोल्ड, दिस इज justifying what I instructed in the class today? सब इवैल्यूएटर बन जाओ मेरे साथ। हम्म, क्या जरूरत है ये सब लिखने का? एज सिग्नेचर क्यों तुमको? शेक्सपियर क्यों बनना चाहते हो? हम्म,
सिंपल डेफिनेशन हो सकता था ना, व्हाट इज राइट, वेयर इट इज फाउंड, कौन सा आर्टिकल उससे रिलेटेड है। तीनों में से कुछ भी नहीं किया है तुमने। तुम आर्टिकल लिख सकते थे कम से कम 32 226, ये तो मेंशन होना चाहिए था यहाँ पे, बेसिक डेटा है। डेफिनेशन लिख सकते थे। हाँ प्रेरणा बताओ। अरे चलो, तो डेफिनेशन लिख सकते थे। हम्म। Writing simple answers is the most difficult task. Writing difficult answers is easier task. तुम ऐसा लिख दो किसी को ना समझ में आए। लेकिन स्टिक टू द बेसिक्स। बहुत टेंशन लोगे तो बहुत गड़बड़ करोगे। आर्टिकल लिखो, डिफाइन करो कि व्हाट इज रिट्स, व्हाट दे डू। फंडामेंटल, पर पहले तो तुमने फैक्चुअली गलत चीज लिखी है, और सब चीजें छोड़ो। फंडामेंटल राइट्स इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल जस्टिस, वो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है भी नहीं। हाँ, क्या कर रहे हो, बैठे आ गए हो। क्लास में पढ़े ना हमने, उसका मेजर क्रिटिसिज्म है कि फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अबाउट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। हम तो देख, मैंने तो पहले इस पे ध्यान ही नहीं दिया मेरा। पहले गलत लिखे हो कि सही लिखे हो? कि तुमसे भी ज्वाइन कर लिया अक्षय का ओ स्वदीप्तो का कैंप। झुकेगा नहीं साला, जो लिख दिया वो ठीक है, पढ़ ले अब। हाँ प्रेरणा, रुको, बोलो। Sir, by mistake, I deleted PM group. So please add me again, sir. अच्छा ठीक है, ऐड कर दो। वही मैं कहूँ कि 61 से 60 कैसे होगा, किसने लीव कर दिया, मैंने देखा नंबर पर। चलो ठीक है। तो क्या बोलते हो, कहाँ गए अक्षय? गलत है सही है? पढ़ाया है ना मैंने पॉलिटी की क्लास में कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अबाउट सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स फंडामेंटल राइट्स में होता है, सॉरी डीपीएसपी में होता है। क्यों गलती हुआ? सिर्फ शेक्सपियर बनने के चलते चक्कर में गलत हुआ। वो सिग्नेचर ट्यून लिखना चाहते थे तुमको लगा कि तुम सिग्नेचर ट्यून लिख के बहुत कुछ अलग आउटस्टैंडिंग कर दोगे। तुम अगर बेसिक लिखना चाहते ना, तुमको पता था, तुम गलती नहीं करते। लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में ऑर्डिनरी भी नहीं रहा, है ना? यही हुआ है ना अक्षय? लिखना था तुमको, तुमने कहीं पढ़ लिया सिग्नेचर ट्यून, तुम्हारे दिमाग में वही घूम रहा है सिग्नेचर ट्यून। इसको तब जहां कोई मिलेगा उसको मैं सिग्नेचर ट्यून चिपका दूंगा। इफ द आंसर राइटिंग में गुड वोकेबलरी होता है विच कैन कन्वे अ लार्जर आइडिया इनटू फ्यू वर्ड्स। तो अगर मैं लिखूं कि देयर इज जेंड्रिफिकेशन, देयर इज ग्लोबलाइजेशन, या फिर मैं इसलिए कुछ लिखता हूं, तो उसका एक मतलब है, वो स्टैंडर्ड वर्ड है, वो गुड वोकेबलरी है। शेक्सपियर वाली वोकेबलरी गुड वोकेबलरी नहीं है। ठीक है। नाउ अब यही जो लिख रहे हो यहाँ पे सब हेडिंग इज मिसिंग, नेचर ऑफ द रिट्स। यहाँ क्या आना चाहिए था, नेचर ऑफ द रिट्स, एंड देन यू राइट व्हाट यू वांट टू राइट। तो टाइप्स ऑफ रिट्स में लिखा हिबियस कॉर्पस, सर्ट्यूनरी, कोवारेंटो, प्रोहिबिशन एंड मैंडेमस। आई एम नॉट चेकिंग द कंटेंट। रिट रेमेडी, रिट रेमेडी क्या होता है? व्हाट्स दिस वर्ड रिट रेमेडी? तो थोड़ा
सब हेडिंग जहां डाल रहे हो उसको थोड़ा सा सोच के डालना है, थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। रिट्स एज रेमेडी कर दो। A remedy obtained to a person who is restrained without any legal jurisdiction. तो ये तो हो गया बस एक हीबियस कॉर्पस का। व्हाट अबाउट अदर रिट्स एज रेमेडीज? सिग्निफिकेंस। तब जब सिग्निफिकेंस लिखो तो यहाँ छोड़ दो ना, इतना तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यू हैव ऑल द स्पेस हियर इन द सेकंड पेज। एक लाइन थोड़ा सा बचा ही दो, ये दो तीन यहाँ करने की क्या जरूरत है? तुम एक लाइन लिख दो सिग्निफिकेंस एंड देन राइट पॉइंट वन, राइट ऑन द नेक्स्ट लाइन इन पॉइंट टू। ठीक है, चलो ठीक है। आजकल मैं गुस्सा बहुत करने लगा। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू लर्न समथिंग। और मेरे पापा कहते थे कि गुड़ मिठ कि छड़ मिठ? गुड़ मीठा होता है, गुड़ समझते हो? जैगरी, जैगरी इज स्वीट, और द केन, छड़ी, क्या मीठी है, जैगरी और द केन? छड़ मिठ, क्योंकि जिसको अगर छड़ी पड़ जाती है, जिसको डांट पड़ जाती है समय से, तो उसका जिंदगी मीठा हो जाता है। हिज होल लाइफ विल बिकम स्वीट। बट दोज हु आर लेफ्ट unchecked, unhindered, so maybe you will get jaggery and you will fail the taste for once. I can say that बहुत अच्छा लिखे हो, keep it on, but फिर जिंदगी खराब हो जाएगी, यूपीएससी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आस्किंग कि सर क्या हर आंसर में कंक्लूजन जरूरी है? यस, एटलीस्ट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू मस्ट ट्राई टू राइट कंक्लूजन्स। एक्चुअल एग्जाम में एक आध छूट भी जाए, टाइम नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा तो चलेगा, बट प्रैक्टिस में नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस में तो कंक्लूजन हमेशा लिखना ही है, और एग्जाम में भी कोशिश करना है कि लिखें। और जिनके पास बहुत एटीट्यूड है, यूपीएससी से बड़ा एटीट्यूड तोड़ने वाला और कुछ कोई दूसरा एंटिटी शायद दुनिया में बना ही नहीं है। यू कैन क्लाइम द एवरेस्ट नाउ डेज विद द हेल्प ऑफ शेरपास, बट यूपीएससी, आई हैव सीन पीपल हु कम टू दिस एग्जाम। मैं अपनी एग्जांपल बता, दूसरों का एग्जांपल मैं क्या बताऊं? लाइक आई वाज समवन हु डिड इट सो इजीली एंड सो स्मूथली। मेरे लिए प्रीलिम्स ऐसा था कि मैंने बस सब फूका और प्रीलिम्स निकल गया। इतना नंबर आ रहा था, इतना लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि 2 क्वेश्चन कम होगा या ज्यादा होगा, और उस साल भी लोग ऐसे ही कह रहे थे बाप रे क्या क्वेश्चन पूछ दिया, वेरी टफ एग्जाम, एंड आई डिड इट लाइक एनीथिंग। सो व्हेन आई वेंट टू दिल्ली आई वाज लाइक, मैं किसी को ऐसे 4 अटेम्प्ट वाला देखता था ना तो मैं कहता था कि कितने बड़े गधे हैं ये, इस टाइम तक अभी तक इनका नहीं हुआ है। एंड देन द यूपीएससी सेट कि वो बहुत घमंड है, तोड़ना पड़ेगा। सो इट ब्रेक्स यू बिफोर इट मेक्स यू, बी रेडी टू बी ब्रोकन। नो, आंसर राइटिंग में तलवीन इज आस्किंग कैन वी मेंशन द टर्म कंक्लूजन व्हाइल राइटिंग आंसर्स? नहीं,
ना इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, ये वर्ड कभी भी यूज नहीं होना चाहिए तुम्हारे आंसर में, कि इंट्रोडक्शन लिखते समय लिख दिया कि इंट्रोडक्शन, बॉडी लिखते समय लिख दिया बॉडी, कंक्लूजन लिखते समय लिख दिया कंक्लूजन। नहीं, ये कभी नहीं करना है। ठीक है, चलो, बाय एवरीवन, and those who have enrolled for the optional mentorship. So we will meet again at 9. Take some rest. See you there. Bye.